Hello guys, in this video we are going to do accounting ratios. Accounting ratios are the mechanism that is used to establish the relationship between the various heads and subheads of the balance sheet and various heads and subheads of the income statement. So it also facilitates the comparison between various items of balance sheet and income statement. So it is used in comparison whether it is inter comparison whether it is इंट्रा कंपैरिजन. तो दोनों तरह के कंपैरिजन में अकाउंटिंग रेशियोज जो यूज़ की जाती है ताकि ये हमें पता लग सके कि बिजनेस की जो बैलेंस शीट की अलग अलग आइटम्स है वो आपस में कैसे रिलेट करती हैं और जो इनकम स्टेटमेंट की अलग अलग आइटम्स है वो कैसे रिलेट करती हैं. तो हम देखते हैं आगे कि अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो कितने तरह की होती हैं. So now accounting ratios are mainly four types. First of all, liquidity ratios are there, which is mainly concerned with the liquidity position of the business. Second is solvency ratios. Solvency ratios are concerned with the solvency position of the business, yani long term financial position, and liquidity means ki short term financial position. Activity ratios are concerned with the performance of the business कि business कैसा perform कर रही है, कितना profit है, कितनी sale है. That is concerned with the activity ratios. And the last one is profitability ratios, the main ratio. The profitability ratios tells us about the profitability of the particular business. और ये चार तरह की रेशियोज है जो वन बाय वन आपकी जो ट्वेल्थ की बुक है उसमें दी हुई है. तो वन बाय वन हमने इनको स्टडी करना है कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होती हैं, एक्टिविटी रेशियोज क्या होती हैं एंड व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज की. तो लिक्विडिटी रेशियोज यहाँ भी ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि लिक्विडिटी इज़ कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनकी जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं उनको कैसे पूरा किया जा रहा है, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या इनफ कैश अवेलेबल है या नहीं, ये इंश्योर करती है लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस और टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी. Liquidity also states that the short-term financial position of a firm. So in liquidity ratios, there are two types of ratios are there. The first one is current ratio and the second one is quick ratio. So two ratios are there, current ratio and quick ratio, that we have to do one by one. And the first ratio is current ratio. So first of all, there is a current ratio. The current ratio establishes the relationship between current assets and current liabilities. So the formula of current ratio is current assets upon current liabilities. Basically, it is used to assess the liquidity position of the business, and it also tells us कि how much current assets are available टू पे ऑफ द करंट लाइबिलिटीज़. तो आम भाषा में करंट रेशियो इसलिए कैलकुलेट की जाती है ये देखने के लिए कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं उनके मुकाबले कितने करंट एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. तो ये एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करता है कि एक बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हेल्दी है या नहीं. तो मेन ऑब्जेक्टिव करंट रेशियो का यही है कि टू असेस द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. सो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. तो करंट एसेट्स में आपने पहले पढ़ा है इन प्रीवियस क्लासेस, इन बैलेंस शीट, इन प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव रेड अबाउट द कि हाउ टू कैलकुलेट द करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त you have to add the cash, bank, debtors, bill receivable, prepaid expenses, accrued income, stock or inventory. So these are some examples of current assets that you have to add to calculate the current assets. So remember one thing, while you are calculating the current assets, you don't have to consider the loose tool and spare parts, क्योंकि जो loose tools है और spare parts हैं इनका जो काउंटिंग साइकिल है वो एक साल से ज़्यादा होता है. इसीलिए हम लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को, हालांकि ये इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन हम इसे करंट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करते. अगर ये इंक्लूडेड हैं लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स तो इन्हें करंट एसेट में से माइनस कर दिया जाता है. तो याद रखिए इस चीज़ को. उसके बाद करंट एसेट्स का कई बार एक और फॉर्मूला यूज़ होता है कि करंट एसेट्स हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर दी जाए तो हमारे पास करंट एसेट्स बचते हैं. तो ये दो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं मेनली. उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज़. एज यू नो कि करंट लाइबिलिटीज़ आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़: क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस.
These are the some examples of current liabilities. You have to add these items to calculate the current liabilities. तो current liabilities calculate करने के बाद उसे फॉर्मूले में पुट कर दो तो वो आपकी current liabilities आ जाएंगी. करंट लाइबिलिटीज एक और फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये है कि करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कई बार हम टोटल लाइबिलिटीज़ में से शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दें तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ बचती हैं. तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो हम करंट रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, आइडियल रेशो कौन सी होगी, आदर्श रेशो, मतलब जो आप कहो कि बिजनेस में ये रेशो होनी चाहिए. तो वो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू. लेट्स सपोज पहली एग्जाम्पल है कि अगर आपके करंट एसेट्स 20,000 हैं और करंट लाइबिलिटीज़ 10,000 हैं, तो रेशो आ गई 2:1. तो इससे ये पता लगता है कि हमारे पास इनफ एसेट्स हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए. तो एक तो ये सिचुएशन होगी. दूसरा केस है व्हेन द एसेट्स आर 10,000 एंड लाइबिलिटीज़ आर 20,000, तो रेशो इज़ 1:2. तो इसका मतलब हमारे पास करंट एसेट्स प्रॉपरली इनफ, करंट एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे ऑफ द करंट लाइबिलिटीज़. इससे ये पता लगता है. थर्ड केस में करंट एसेट्स 50,000 है और करंट लाइबिलिटीज 10,000 है, तो यहाँ पे रेशो 5:1 है. तो हालांकि मतलब हमारे पास करंट एसेट बहुत ज़्यादा है, 5 गुना है करंट लाइबिलिटीज़ का, 5 टाइम्स. बट लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो आइडल जा रहे हैं, हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे ये भी सिनेरियो है. तो अगला केस जो है उसमें करंट एसेट्स 2,000 है, करंट लाइबिलिटीज 20,000 है, रेशो 1:10 है. इसका मतलब करंट एसेट्स बहुत ही कम है और करंट लाइबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है. अगर इन चारों केसेस में हम देखें, जो थर्ड केस है हालांकि उसमें करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा है, पर वो ये साथ में हमें इंडिकेट कर रहा है कि फर्म इज़ नॉट इनफ कैपेबल टू यूज़ या यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कि अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जा रहा है और वो एसेट जो है वेस्ट जा रहे हैं, इसलिए रेशो 5:1 है. तो ये ठीक नहीं है. और अगर हम फोर्थ केस की बात करें जिसमें रेशो 1:10 है, इसमें करंट लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत पुअर लिक्विडिटी पोजीशन है एक फर्म की. अगर हम सेकंड केस की बात करें जिसमें 1:2 है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज उसका डबल है, ज़्यादा है. तो सबसे आइडियल सिचुएशन जो है वो है फर्स्ट केस, जहाँ पे करंट एसेट्स 20,000 है और करंट लाइबिलिटीज 10,000 है, यानी रेशो 2:1 इज़ द आइडियल रेशो जो सबसे बेस्ट मानी जाती है. बहुत ज़्यादा रेशो भी ठीक नहीं है, बहुत कम रेशो भी ठीक नहीं है. ज़्यादा रेशो होने का मतलब ये होता है कि एक फर्म इनएफिशिएंट है अपने करंट एसेट्स को ढंग से इस्तेमाल करने में, उसके एसेट्स जो हैं वेस्ट जा रहे हैं. इट मीन्स अगर बहुत कम है तो इसका मतलब उनकी करंट लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और ये उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी. तो दिस इज़ द करंट रेशो. तो नाउ क्विक रेशो इज़ देयर. Quick ratio tells us that it establishes a relationship between the quick assets and current liabilities. So quick assets are normally used to assess the exact liquidity position of the business. Quick assets are those assets which can be easily or quickly converted into cash. तो quick ratio always tries to explain the relationship between quick assets and current liabilities. अब quick assets क्या होते हैं, जिनको फटाफट कैश में कन्वर्ट किया जा सके. करंट लाइबिलिटीज आपको पता है, वो मैं पिछले कवर कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ. तो क्विक एसेट्स मेनली वो एसेट्स या तो जो कैश फॉर्म में अवेलेबल है या जिनको कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है. बिल रिसीवेबल हो गए, डेटर्स हो गए, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया. लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें, अब स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करना हमारे हाथ में नहीं है, वो जब बिकेगा तो वो कैश में कन्वर्ट होगा. तो इसलिए स्टॉक जो है वो क्विक एसेट नहीं है. ना ही प्रीपेड एक्सपेंस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो वो तो फिर उसे तो कैश में कन्वर्ट करना ही पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए वाइल वी हैव टू कैलकुलेट द क्विक एसेट्स, हमें क्विक एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे. तो आफ्टर डिडक्टिंग द इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम करंट एसेट्स वी गॉट द क्विक एसेट्स. तो ये होते हैं क्विक एसेट्स और इसका रेशो का फॉर्मूला जैसे आपको पता लग चुका है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. तो दिस वाज आवर टॉपिक. आई होप आपके सारे कंसेप्ट जो हैं करंट रेशो से रिलेटेड और क्विक रेशो से रिलेटेड कवर हो गए हो. और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, कई बार हम जब करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक और फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स एंड माइनस करंट लाइबिलिटीज़. वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस,
या विच इज़ रिक्वायर्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस, वो पैसा या वो कैपिटल जो हमारी रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड, द फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये भी करंट रेशो में कई बार यूज़ होता है, सो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस वॉज आवर टॉपिक